नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज वीएनएम टीवी पर एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो गुजरात के फायर ब्रांड नेता है। गुजरात में अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहां तो कोई फायर ब्रांड नेता हो नहीं सकता, क्योंकि सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रही नहीं है और ऐसे में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो ही आवाज उठाते रहते हैं। गुजरात में जब लोकसभा के चुनाव हुए 2024 के, तब बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में भरूच लोकसभा सीट से चैतर वसावा ने एक टफ फाइट दी मनसुख वसावा को। भले ही वो जीत नहीं पाए, लेकिन चैतर वसावा जो है वहां के काफी लोकप्रिय नेता है और विधायक तो है ही डेडियापाड़ा के। भले ही लोकसभा नहीं जीत पाए, लेकिन हमेशा से आदिवासियों के हित में और गुजरात के नागरिकों के हित में आवाज उठाते आए हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, वो उन पर लगातार हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। कई सारी पुलिस शिकायत पिछले दिनों उन पर हुई है और इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज चैतर वसावा हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये सरकार उनसे डरी हुई क्यों है। चैतर भाई नमस्ते, स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। जी नमस्ते। चैतर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो गुजरात में कानून और व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पहला એવું હતું કે આપણા ત્યાં સુરક્ષિત આખો માહોલ હતો, પણ હવે એ સુરક્ષા ક્યાંક ખોવાતી હોય એવું લાગે છે। શું કહેવા માંગશો? જી, આપણે તમે જોયું હશે કે 16/12/2012 ના રોજ જે નિર્ભયા કાંડ દિલ્હી ખાતે બન્યો હતો અને એને આજે 12 વર્ષ થયા અને 16/12/2024 ના રોજ ઝઘડિયામાં પણ એક બનાવ બન્યો છે। તો જે રીતના બનાવો રોજબરોજ બહાર આવે છે, ગુજરાતમાં તમે જોયું હશે છેલ્લા એક વર્ષમાં 648 જેવા બનાવો બહાર બનીને આવ્યા છે। તો આપણે એક બાજુ મહિલાની વાત કરીએ છીએ, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની વાત કરીએ છીએ, એની પાછળ કરોડો રૂપિયાનું બજેટ બને છે, છતાંય છેલ્લા 10 વર્ષમાં 400 ગણા કેસોમાં વધારો થયો છે। પોક્સોની વાત કરીએ, પોક્સોમાં આજે 4375 જેટલા કેસો આજે કોર્ટોમાં પેન્ડિંગ છે। આપણે એના માટે ઓક્ટોબર 2019માં ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટો તો બનાવી દીધી ગુજરાત સરકારે, પણ એમાં પણ 912 જેટલા કેસો પોક્સોના પેન્ડિંગ છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક આવા બનાવો બને છે, કેન્ડલ માર્ચો થાય છે, શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ, નેતા અમારા જેવા નેતાઓ ત્યાં જાય છે, બધી રાજનીતિઓ પણ થાય છે, પણ જે ઠોસ કાર્યવાહી થવી જોઈએ, જે પરિવારને ન્યાય મળવો જોઈએ, એના માટે વર્ષો લાગી જાય છે। તો અમે કહીએ છીએ કે સરકાર જે એમની પોલીસનો ઉપયોગ એમના બંદોબસ્તમાં કરે છે, એમની વ્યવસ્થાઓમાં પોલીસનો ઉપયોગ કરાય છે અને એમની સુરક્ષામાં ઉપયોગ કરાય છે, વિપક્ષના નેતાઓને દબાવવા માટે ઉપયોગ કરે છે, એની જગ્યાએ ગુજરાતમાં જે પોલીસની કામ સલામતી વિશ્વાસ તો એ જાળવી માટે પોલીસ જો કામ કરે તો ચોક્કસપણે આના પર આપણે નિયંત્રણ લાવી શકીએ છીએ। સાથે સાથે ગુજરાતમાં એવા કડક કાયદા બનાવવામાં આવે, કોઈ પણ આવા નાબાલિગ દીકરીઓ સાથે આવું દુષ્કર્મ કરે છે એને તો જાહેરમાં ફાંસી આપવા સુધીની સજા કરવી જોઈએ, એવી અમે માંગ કરીએ છીએ। નહીં તો આપણે કોઈ દીકરી સાથે આવા બનાવ ન બનવા જોઈએ, પણ કદાચ કોઈ રાજ્યમાં બનાવો બને છે તો આપણા મુખ્યમંત્રી ગૃહમંત્રી તરત બહાર આવીને મુખ્યમંત્રીને સલાહ આપવા જાય છે। આપણે બંગાળમાં જે ઘટના ઘટી એ દુઃખદ હતી, પણ ત્યાંના મુખ્યમંત્રીને સલાહ આપવા માટે આ લોકો નીકળેલા। એમણે લાંબા લાંબા ટ્વીટ કર્યા હતા, એમણે કીધું કે બંગાળમાં આમ થઈ ગયું, કેન્ડલ માર્ચ કાઢ્યા હતા। તો ગુજરાતમાં થાય છે તો કેમ ત્યાંના સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓ, સરકારના ગૃહમંત્રી, મુખ્યમંત્રી મૌન સેવી લે છે? એટલે કહેવાનો મતલબ કે સંવેદનાશીલ સરકારની મોટી મોટી વાતો થાય છે, પણ સંવેદના કેમ જાગતી નથી? મહિલા સુરક્ષાની મોટી મોટી વાતો થાય છે તો કેમ ઉપરા છાપરી તમે વડોદરામાં દાહોદની બનાવ, સુરત, અમરેલી, ભાવનગર જે પણ બનાવો બન્યા છે એના નરાધમોને આજે સુધી ફાંસી કેમ નથી આપણે આપી શક્યા? એના માટે આપણે આવનારા ભવિષ્યમાં કરવું પડશે અને જે સરકાર પોલીસની વ્યવસ્થા છે એમને પણ એમના કામ કરવા દેવા પડશે, નહીં કે વિપક્ષના નેતાઓને દબાવવા માટે, પોતાની સુરક્ષા માટે, વ્યવસ્થા માટે પોલીસનો ઉપયોગ કરવાના। આજે આખા ગુજરાતમાં ઈડી, સીબીઆઈ, ઇન્કમ ટેક્સ અને પોલીસના ઉપયોગ કરીને સરકારો ચાલે છે। એટલા માટે અમે માંગ કરીએ છીએ કે આવા કોઈ પણ ઘટના ઘટે એવા નરાધમોને તાત્કાલિક ધોરણે ફાસ્ટ ટ્રેકમાં ટ્રાયલ ચલાવીને જાહેરમાં ખુલ્લામાં ફાંસી આપવી જોઈએ। તો આવનારા દિવસોમાં આવું રાક્ષસી કૃત્ય કરતા પહેલા 2 વખત વિચારશે। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ सर आपकी बात से, क्योंकि गुजरात में महिला सुरक्षा एक वक्त पर बहुत
ऐसा माना जाता था कि गुजरात सरकार ये गर्व लेती है कि गुजरात की महिला आधी रात में भी गरबा खेलने जा सकती है, लेकिन उसी बीच जो दुष्कर्म वडोदरा में सामने आया उसने सभी की आंखें खोल दी और छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। दाहोद में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्ची के ऊपर दुष्कर्म कर उससे छेड़खानी कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चियां सुरक्षित नहीं है और भले ही आरोपी पकड़े जाते हैं लेकिन उन्हें सालों साल सजा नहीं होती और उसी की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। સર આપણા ત્યાં કાનૂન વ્યવસ્થામાં તો બદલાવની ખૂબ જ જરૂર છે, પણ કાનૂન જે છે એ જ્યાં જરૂરત નથી હોતી ત્યાં લાગુ કરવામાં આવે છે। છેલ્લા ઘણા દિવસોમાં તમારા ઉપર પદયાત્રાની અનુમતિ નહીં કાઢવા બદલ તમારા પર એફઆઈઆર થઈ, એ પછી એક કંપનીનો જે મામલો હતો એમાં પોલીસે એવું કીધું કે ચેતર વસાવા ત્યાં પહોંચીને रुकावट करी। आवा बधा खोटा खोटा जे मामला उभा करीने तमने दबावવાની, तमने चूप करावવાની कोशिश थाय छे, एना पर शुं कहेशो? અંગ્રેજોનું શાસન હતું આઝાદી પહેલા, ત્યારે પણ આપણા ગાંધીજી હોય, સરદાર પટેલ સાહેબ હોય કે જવાહરલાલ નહેરુ હોય, સુભાષચંદ્ર બોઝ હોય, એમની આગેવાનીમાં ઘણા પદયાત્રાઓ થઈ, પણ ત્યારે પણ અંગ્રેજોએ આવી રીતના ખોટી એફઆઈઆર કે એમને પદયાત્રાઓ બાદ એમને જેલ હવાલે નથી કર્યા। ત્યારે અમે ઝઘડિયા અને ભરૂચના લોકોનો ન્યાય અપાવવા માટે જે પદયાત્રા કરી, તો પોલીસ વિભાગે અમે યાત્રા દરમિયાન અગાઉ પરમિશનની માગણી કરી હતી, એસપી કલેક્ટરને અમે લેખિતમાં માગણી કરી હતી, પ્રાંત અધિકારી પર માગણી કરી હતી। છેલ્લા દિવસે એમણે અમને નામંજૂરીનો લેટર આપ્યો અને અમે પદયાત્રા કરી ત્યારે કોઈ પણ જાતના કોઈ પણ વ્યક્તિ સરકારી કે કોઈને ખાનગી રીતે અમે અડચણરૂપ નથી બન્યા। છતાં ત્યાંના પીઆઈ પોતે અરજદાર બનીને દિન 5 પછી મારા પર એફઆઈઆર કરે છે। તે દિવસે અમે 10 કિલોમીટરની યાત્રા 3 કલાક ચાલીને જઈએ છીએ। ત્યાં ઝઘડિયા પહોંચીને અંકલેશ્વરથી કામદારનો ફોન આવે છે, ડેટોક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ થયો છે। બ્લાસ્ટ બપોરના 12:40 થયો હતો અને મારી પર 4 વાગે ફોન આવે છે। એમ કોણ મરણ પામેલ છે, કોને ઈજા થયેલી છે, કંપની અને એની ઓથોરિટી દ્વારા અમને કોઈ પણ જાતની જાણ કરવામાં નથી આવતી। ચૈતરભાઈ તમે આવો તો સારું, અમે ત્યાં પહોંચીએ છીએ, કામદારોને મળીએ છીએ, ત્યાંની ઓથોરિટી યુનિટ મેનેજર, પ્રાંત સેફ્ટી અધિકારીને મળીએ છીએ, ત્યાં પીઆઈ પીએસઆઈ બધા ઉપસ્થિત હોય છે। અમે 5 વાગે એમને એવું કહીએ છીએ કે 12:40ની ઘટના છે, જે પણ મરણ પામેલા છે એમના પરિવારને તો કમસે કમ કહો કે કોણ મૃત્યુ પામ્યું છે। તો 5 વાગે પછી એ લોકો મને યાદી આપે છે, હું એ બહારથી કામદારોને જણાવું છું કે આટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે। એમના પરિવાર આવે છે, એમનો પરિવાર એટલો બેન જે એમની પત્નીઓ તો બેહોશ થઈ જાય છે, એમના પરિવાર રડે છે, અમને કહે છે અમને ન્યાય અપાવો। એટલે એક તો પોલીસ આટલા લેટ જાણ કરે છે, અમે કંપની સાથે મળીને પરિવારને માનવતાની રીતે 30-30 લાખ રૂપિયા એક પરિવારને અપાવીએ છીએ, પણ આ ત્યાંના સ્થાનિક લોકોના પેટમાં તેલ રેડાય છે, કોઈને ગમતું નથી। 3-7 પછી ત્યાંના પીએસઆઈ ને અરજદાર બનાવીને મારા પર ખોટી એફઆઈઆર થાય છે। રાજપાડીમાં પીઆઈ ને અરજદાર બનાવવામાં આવે છે, અંકલેશ્વરમાં પીએસઆઈ ને। તો કંપની રાજી ખુશીથી આપે છે, અમે ત્યાં પરિવાર અમારી સાથે સહમતિ છે, તો એફઆઈઆર કરવાની શું જરૂર પડે છે? એટલા માટે પોલીસનો દુરુપયોગ થઈ રહેલો છે। જે પોલીસનું કામ હતું એ કામ કરવા દેવામાં આવતું નથી, એના લીધે આજે કાયદો અને વ્યવસ્થા ખાડે ગઈ છે। कानून को जो काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है और कानून का इस्तेमाल अलग अलग रूप से हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो विपक्ष के जो नेता होते हैं उनके घर पर तो सुबह से ही पुलिस बिठा दी जाती है और इसीलिए गुजरात में अब सब कुछ ठीक नहीं है। गुजरात मॉडल की पोल लगातार खुलती जा रही है। चेतर वसावा डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक हमसे बात कर रहे हैं। चेतर भाई, તમે એ પોલીસ પર એ ઇલ્ઝામ પણ લગાવ્યો છે કે હપ્તાખોરી લે છે। આપણા ત્યાં દારૂબંધી હોવા છતાં પોલીસ પોતે હપ્તા લઈને દારૂબંધી જે છે એની સરેઆમ ધજ્જી ઉડાવે છે, એના પર શું કહેશો? ગુજરાતની પોલીસ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિએ કોઈ ફરિયાદ કરવા જવું હોય, પોક્સો જેવી ફરિયાદ માટે એમના ચંપલ ગહાઈ જાય છે, પણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધતી નથી। અમે ભરૂચ પોલીસ અને ત્યાંના એસપી ને હપ્તા ઉઘરાવતા 35 જેટલા સીસીટીવી ફૂટેજ અમે એમને આપ્યા છે, પ્રેસ મીડિયામાં જાહેર કર્યા છે, લોકોમાં પણ જાહેર કર્યા છે। એ પોલીસ અધિકારીઓ કોના કહેવાથી હપ્તા ઉઘરાવે છે, છતાંય આજ દિન સુધી ત્યાંના એસપી ડીવાયએસપી કોઈ જાતની તપાસ કરી નથી અને અમારી પર પદયાત્રામાં રાતોરાત 2 એફઆઈઆર કરી દે છે। એટલા માટે આ જે શાસન, જે ભયનો માહોલ છે એ ખૂબ ભયાનક ગુજરાતમાં પોલીસનો ઉપયોગ થાય છે। પોલીસનો ઉપયોગ ભૂમાફિયાઓ પર, ઇનલીગલી ડ્રગ્સ, દારૂ, રેતી, જે પણ ઇનલીગલી જે પણ ચાલે છે એમની પર હપ્તા ઉઘરાવવા માટે પોલીસ
અને પોલીસ એ માત્ર પોતા માટે નથી ઉઘરાવતી, એ ઉચ્ચ અધિકારીઓને કમલમ સુધી હપ્તા પહોંચાડે છે. એટલા માટે આજે ગુજરાતમાં બેફામ ડી ક્વોલિટીનો દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે. નકલીની ભરમાળા આજે આખા ગુજરાતમાં વધી રહી છે. તો આમાં પોલીસ મૂકબંધુ બનીને જોયા કરે છે અને આ બધું ચાલી રહ્યું છે. અને જે ડ્રગ્સ અંકલેશ્વરમાં પકડાય એ કંપનીઓ તો પાછી ચાલુ પણ થઈ ગઈ. તો વિચાર કરો કઈ હદે હપ્તાખોરી ચાલતી હશે. અમારા ભરૂચના સાંસદ મનસુખભાઈ લેટરો પણ લખ્યા એમના મુખ્યમંત્રીને કે ભાઈ આ તમારી પોલીસ અહીંયા હપ્તા ઉઘરાવે છે. તો પણ કોઈ સમજવા તૈયાર નથી. અમે તો વિપક્ષમાં છે એટલે કહીએ. એમણે પણ પત્ર લખ્યા છે. એક સિનિયર સાંસદ 7 ટર્મના પોતાની સરકારમાં બિચારા વિનંતી કરે કે આ હપ્તાખોરી બંધ કરાવો, તો પણ સરકારનું પેટનું પાણી નથી હલતું. એટલે કેટલી હદે અમલદારશાહી આ સરકારમાં હાવી થઈને બેઠી છે એ તમે અમે સારી રીતે જોઈ શકીએ છીએ. બિલકુલ. અને એટલે જ ગુજરાતના જે લોકો છે એ હવે બહુ બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. સર, નર્મદા અને ભરૂચ જિલ્લામાં મનસુખ વસાવા કામ તો કરતા હોય છે, પણ હજુ પણ આદિવાસીઓને એ રોજગાર, એ શિક્ષણ, એ સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ નથી આપણે અપાવી શક્યા. શું કરી શકાય? તમને શું લાગે છે કે શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હજુ પણ થવું જોઈએ કે આદિવાસી પણ જે મેઇન સ્ટ્રીમમાં આવીને એમને પણ એ રોજગાર મળે, એ પણ એ લોકો પણ એ પોસ્ટ પર હોય અને બધા જ આદિવાસી લોકો જે છે એમનું પણ ઉત્થાન થાય? શું કરી શકાય? સરકારને શું સલાહ આપી શકાય? સરકારને તો હું શોર્ટમાં કહી દેમ છું, જે આઝાદીના 10 કે 20 વર્ષ નથી થયા, આજે 78 વર્ષ થઈ ગયા છે. સરકારો કેટલી આવીને ગઈ. કોંગ્રેસની હતી, આજે ભાજપની 30 વર્ષથી છે. પણ કોઈને આદિવાસીના વિકાસમાં રસ નથી. આજે તમે જોઈ લો, આજે આદિવાસી ગામમાં શાળા માટે આંદોલન કરે છે. આજે આદિવાસી શાળામાં શિક્ષક માટે આંદોલન કરે છે. પીએમજીવાય જે 5 લાખના આયુષ્માન કાર્ડ જે ચાલતા નથી એના માટે આંદોલન કરે છે. બાળકોની શિષ્યવૃત્તિ માટે આંદોલન કરે છે. પોતાના જાતિના દાખલા માટે આંદોલન કરે છે. આ વિસ્તારના દવાખાનાઓમાં એક્સરે કે સોનોગ્રાફી જેવા મશીનો નથી, એના માટે આજે રોડ પર છે. ડોક્ટરો માટે આજે રોડ પર છે. તો આઝાદીના 78 વર્ષ પછી પણ આજે પણ લડેંગે જીતેંગે જિંદાબાદ મુર્દાબાદ. આ વિસ્તારમાં નકલી બધું, નર્સિંગ કોલેજો નકલી ચાલે, કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરીઓ નકલી ચાલે, ટોલ નાકાઓ નકલી ચાલે, બધું નકલી. તો ક્યાં સુધી આ આદિવાસી લડતો રહેશે? એટલે અમે તો સરકારોને કહીએ છીએ, આઝાદી પહેલા જે ભીલ પ્રદેશ હતો તેને આજે આઝાદી બાદ વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. જે રીતના આજે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના 14 જિલ્લા, આજે રાજસ્થાનના ઉદયપુર, ડુંગરપુર, બાંસવાડા, આજે મધ્યપ્રદેશમાં પાલ, અલીરાજપુરના તમામ જાંબુવા થઈને તમામ વિસ્તાર, આજે મહારાષ્ટ્રનો નંદુરબાર થી લઈને પારઘર સુધીનો વિસ્તાર આજે પણ બોર્ડરલેસ થઈને વ્યવહાર છે. આજે પણ અમે અમારા સુખ દુઃખે ભેગા થઈએ છીએ. આજે પણ અમારા રીતિ રિવાજો, પરંપરાઓ, અમારી ધર્મની વિધિ, અમારી પૂજા વિધિ, અમારા લગ્ન મરણની વિધિ આજે પણ અમારે એકબીજા સાથે છે. આજે અમારી બોલી, ભાષા, રહેણી કહેણી બધું જ અમારું સાચું છે, સારું છે. જો સરકારો આદિવાસીના ઉત્થાનની વાતો કરતી હોય, જો એમના મનમાં આદિવાસીઓના વિકાસની વાત હશે, તો આદિવાસીઓને 29મું રાજ્ય આપી દે, ભીલ પ્રદેશ રાજ્ય બને અને એની રાજધાની કેવડિયા બને, તો જ આવનારા ભવિષ્યમાં આદિવાસીનો વિકાસ થવાનો છે. નહીં તો ગમે તેટલા સારા કાયદા કાનૂન, સારી યોજનાઓ બનશે, ગ્રાન્ટો ફળવાશે, પણ અમલદારશાહી, એનો ટીડીઓ બીજો હશે, કલેક્ટર બીજા હશે, અહીંના એનજીઓ બીજા, બહારથી આવેલા એનજીઓ અહીંયા કામ કરશે. એ માત્ર ને માત્ર ગ્રાન્ટ સગે વગે કરવાના કામો કરે છે. એનાથી આદિવાસીઓને શું જોઈએ છે એનો વિકાસ થતો નથી. આજે નર્મદા ડેમમાં એટલા બધા ગામડાઓ ગયા, કડાણામાં એટલા બધા ગામો વિસ્થાપિત થયા, એનું પાણી આજે આદિવાસીઓને નથી મળતું. અમે તો કહીએ છીએ 500 કિલોમીટર કચ્છ લઈ જાઓ છો, એના કરતા તમે બીજા 500 કિલોમીટર તમે દિલ્હી સુધી લઈ જાઓ, પણ જે લોકોએ ગામડા ગુમાવ્યા છે એને તો તમે પાણી આપો. તમે સરદાર પટેલ સાહેબની 182 મીટર વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા બનાવી દીધી, કઈ વાંધો નહીં. અમે તો કહીએ છીએ તમે 500 મીટર બનાવો, પણ એ જ ગામમાં બાળકોને ભણવા માટેની શાળા નથી. એનાથી બાજુના ચાપટ ગામમાં મહિલા પ્રસૂતિથી પીડાય છે, એને જવા માટેનો, એમ્બ્યુલન્સ પહોંચવા માટેનો રસ્તો નથી. 10 કિલોમીટર ઝોલીમાં લઈ જવું પડે છે. તેની બાજુમાં તુરખેડાની મહિલાની પ્રસૂતિ એટલી પીડાય છે, પ્રસૂતિથી પીડાઈને મહિલા તો મરી જાય છે. નાની બાળકીને જન્મ આપે છે, બાળકી પોતાનું નાની માસૂમ દીકરી પોતાનું માં ગુમાવી દે છે. તો આ કઈ રીતનો વિકાસ છે? આદિવાસીનો વિકાસ આ વિસ્તારમાં રોડો બની જવાથી, ઊંચી ઊંચી પ્રતિમાઓ બની જવાથી, મોટા ડેમ બની જવાથી, નહેરો બની જવાથી
જેટકોના હાઈ ટેન્શન લાઈનો નીકળવાથી વિકાસ નથી. जी આદિવાસીઓને શિક્ષણ આપો, સિંચાઈનું हम्म પાણી આપો, સારું આરોગ્ય આપો, કનેક્ટિવિટી આપો, રોજગાર આપો. આદિવાસી પણ સારું પોતાનો વિકાસ કરશે, બાળકો પણ આઈએસ આઈપીએસ બનશે. તમામ ક્ષેત્રોમાં આદિવાસી આગળ આવે એવો છે, પણ સરકારે जी વિકાસ નથી કર્યો, એટલા માટે આજે આદિવાસીનો વિકાસ થયો નથી. જી સર, આપણે નર્સિંગ કોલેજનો જે મુદ્દો છે એ પણ ઘણો જોરશોરથી ઉઠાવ્યો છે. એ મામલો ક્યાં સુધી પહોંચ્યો? શું એ નકલી નર્સિંગ કોલેજો બંધ કરવામાં આવ્યા છે કે હજુ એ ચાલી જ રહ્યા છે? ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં ખૂબ મોટા પાયે આવી બોગસ નર્સિંગ કોલેજો, નકલી નર્સિંગ કોલેજો ચાલે છે. હમ નકલી કોલેજ ચાલે એટલે એમાં સરકારે પોતે અરજદાર બનવું પડે. અમે તે જી વખતે પણ માંગ કરી હતી કે જિલ્લાના આરએમઓ સાહેબ અરજદાર બને હમ અને સરકારને બતાવે કે આ નકલી કોલેજ અમે અહીંયા નકલી કોલેજ ચાલે છે. છતાં સરકારે નકલી કોલેજો ચાલે છે એવી એનાથી બચવા માટે એક વિદ્યાર્થીને અરજદાર બનાવી કે 400 જેટલી વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમારે રાજપીપળામાં છેતરપિંડી થઈ, બીજી વિદ્યાર્થીઓ સાથે વ્યારામાં, ડેડિયાપાડામાં, સુરતમાં, અંકલેશ્વરમાં, છોટાઉદેપુરમાં પુષ્કળ પ્રમાણે અનેક વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્ય 6 વર્ષ બગાડ્યા, 3 વર્ષ બગાડ્યા, 3 લાખ રૂપિયા ફી લઈ લીધી, ડિગ્રી નથી મળી, કોઈ તાલીમ નથી મળી, કોઈ કોચિંગ નથી કરાવી. એટલે આવી બોગસ સંસ્થાઓ ચાલે છે તો સરકારને ખબર જ છે. સરકારે જ આ લોકોને એમના આશીર્વાદથી જ ચાલે છે, સ્થાનિક એમના નેતાઓના આશીર્વાદથી જ ચાલે છે. એટલા માટે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. માં કામલ સંસ્થા સામે અમે પડ્યા તો 400 વિદ્યાર્થીઓની ડોક્યુમેન્ટ આપવાની પ્રોસેસ ચાલે છે. હાલમાં આપણે કોર્ટમાં એ કેસ ચાલે છે. પણ આવી તો કેટલી બધી કોલેજો છે, તો સરકાર કેમ એ કરતી નથી? એટલે માત્ર ને માત્ર ખાનગી કોલેજોને પરવાનગીઓ આપીને એમના હપ્તાઓ લઈને કમલ, એટલા માટે જ આ સરકાર આવી કોલેજોને છાવરી રહી છે. એમના આશીર્વાદથી જ આવી બોગસ અને નકલી કોલેજો ચાલે છે આ વિસ્તારોમાં. સર, એક છેલ્લો સવાલ જરૂર પૂછવા ઈચ્છીશ કે બહુ બધી તકલીફો છે ગુજરાતમાં. કાનૂન વ્યવસ્થાની આપણે વાત કરીએ, શિક્ષા આપણા ગામડાઓમાં હજુ સારી સ્કૂલો નથી બનાવી શક્યા, સારા હોસ્પિટલ નથી બનાવી શક્યા. મારા કે તમારા જેવા લોકો કદાચ સરકારી સ્કૂલમાં કે સરકારી હોસ્પિટલોમાં જવા નથી ઈચ્છતા. ગુજરાતના લોકોને શું સંદેશ આપશો જ્યારે હવે સ્થાનીય સ્વરાજના ઇલેક્શન આવશે અને જ્યારે એક સરકાર, એક સત્તા આપણે પસંદ કરવાની હોય ત્યારે શું શું ધ્યાનમાં ગુજરાતની જનતાએ રાખવું પડશે? ગુજરાતની જનતા અને યુવાનો તો આજે બધા તમે જાણો છો, આજે ખેડૂત આંદોલનો કરે છે, મહિલાઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે, આજે કરાર આધારિત કર્મચારીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે, આજે જૂની પેન્શન યોજના માટે આંદોલન થઈ રહ્યા છે. તો ગુજરાતની જનતા તો ત્રાહિમામ પોકારી રહી છે. એની મસલ પાવર, મની પાવર, એનો પોલીસનો ઉપયોગ, ઈડી, સીબીઆઈ, પછી જેટલી પણ કર્મચારી વહીવટી વિભાગના છો એમનો ઉપયોગ કરીને આજે સરકારો બનાવે છે, જીતે છે. તો જનતાને અમે માત્ર એટલી અપીલ કરીએ છીએ કે આટલા વર્ષોથી ભાજપની સરકાર ચાલે છે, કેન્દ્રમાં એમની સરકાર ચાલે છે, પોતે નારી શક્તિની વાત કરે છે, પોતે ગુજરાત મોડલની વાત કરે છે, નાની સશક્તિકરણની વાતો થાય છે, બેટી બચાવો બેટી પઢાવોની વાત છે. માત્ર ને માત્ર એ પોતાના પ્રચારો માટે જ કરે છે. ગુજરાતની જનતા આજે પણ રોજગાર માટે રોડ પર હોય છે. તો આવનારા ભવિષ્યમાં જનતા વિચારે અને આવનારા સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હોય, તાલુકા જિલ્લાની ચૂંટણી હોય કે વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય, 30 વર્ષ તો ભાજપને આપી દીધા છે. આવનારા દિવસોમાં આમ આદમી પાર્ટી મજબૂત પાર્ટી તરીકે આગળ આવી રહેલી છે. એમને જો તક મળશે તો ચોક્કસ જે રીતના પંજાબ અને દિલ્હીમાં કામ આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતમાં થશે. चलिए, हम आम आदमी पार्टी के गुजरात के विधायक चेतर वसावा से बात कर रहे थे, जो कह रहे थे अब चुनाव आ रहे हैं तो जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि को आपको परखना होगा, क्योंकि बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो कैसे सुलझेगी वो सिर्फ एक नागरिक तय कर सकता है। चेतर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये जो सारी बातें हैं वो आपकी आंखें खोल देने वाली बातें हैं, और ये सारी बातें आपको जाननी और समझनी होगी। आपको किसे वोट करना है, किसे जनप्रतिनिधि बनाना है, ये तो आपकी राय होगी, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं जिससे गुजरात की जनता जूझ रही है, उससे आखिरकार कैसे निजात पाएगी, वो हर किसी नागरिक को सोचना होगा। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी
सारी बातें गुजरात के हर नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. हमारी जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे इनसे कोई गहरा कनेक्शन हो, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी किसी का ऑरा इतना प्योर होता है कि उनके साथ सिर्फ बैठकर भी हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। आजकल स्पिरिचुअलिटी और जो एनर्जीज के बारे में नॉलेज होता है, उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज हम सभी को होता ही है। हम सब ये बात जानते ही हैं कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए। हमारी जिंदगी में कैसा क्या चलेगा, किस तरह के लोग हमारे सामने आएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हुई कुछ बेसिक बातें, लेकिन इससे जुड़ी कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम यानी कि आम लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में सिर्फ एक्सपर्ट्स को पता होता है। और आज वीएनएम टीवी पर हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी साइंस एक्सपर्ट जितेंद्र पटवारी जी से, जो कि बेनेटो लाइफ सॉल्यूशन के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। और आज इनसे ये खास बातचीत होगी दो विषयों पर। आपको बता दें कि जितेंद्र पटवारी जी को मौका मिला अमिताभ बच्चन जो
महानायक कहे जाते हैं बॉलीवुड के, उनसे मिलने का मौका और उनके साथ का जो खास एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो अभी मैंने बात करी एनर्जीज के बारे में, इससे जुड़ी भी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगी। तो जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ में। अब सबसे पहले हम जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान जितेंद्र पटवारी जी से। नमस्कार जितेंद्र पटवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू जी। जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया आपको, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमिताभ बच्चन जी के साथ जो आपका अनुभव है, और उससे हम शुरू करेंगे। कैसे मौका मिला आपको वहां तक पहुंचने का? In fact, actually, there is a national summit, Ancient and Modern Healing Modalities. इसके ऊपर एक नेशनल समिट होती है और जो टॉप एक्सपर्ट्स है इंडिया के वो इसमें होते हैं स्पीकर में। फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ देम। तो 8 दिसंबर को मुझे इस समिट अटेंड करना था और 9 को मैं वापस आने वाला था, बट हमारी एक फैमिली फ्रेंड है जो चक्र संहिता मेरी जो बुक है इसमें भी अलग अलग प्रकार से किसी न किसी तरह से उसने कंट्रीब्यूट किया है। वो अभी बॉम्बे में है, उसके कुछ कनेक्शंस है एक संजय अग्रवाल जी से जो केबीसी में जाने में सबको हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली पूछा कि अगर आप आ ही रहे हैं, अगर एक दिन रुक जाए और केबीसी में जा पाए तो आपको अमिताभ जी की एनर्जी का फिल करने का, इनको चक्र संहिता गिफ्ट करने का वगैरह मौका मिलेगा। सो इफ यू कैन कम, इमीडिएटली आई डिसाइडेड आई कम बाय 10th and 9th I'll go। तो उसने हमारी कुछ संजय अग्रवाल जी की हेल्प लेके कर दी मदद, एंड जो भी वीआईपी बोले या जो भी इस तरह से हमारी व्यवस्था हो गई। सो फर्स्ट रो में ही केबीसी का शूट अटेंड करने का, अमिताभ जी के साथ छोटी सी बातचीत करने का, बुक गिफ्ट करने का, ऑटोग्राफ लेने का, वो सब मौका मिला। सो थैंक्स टू दैट फ्रेंड एंड संजय अग्रवाल जी। एक्चुअली मैं जानती हूँ हम में से कई लोगों का ये सबसे बड़ा सपना है कि हम एक बार अमिताभ बच्चन जी से मिल सके। अब उनके साथ में मिलने का ये मौका इन्हें तो मिला, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी जो एनर्जी का जो ऑरा था, क्या महसूस हुआ है उन्हें, क्या अनुभव रहा है अमिताभ बच्चन जी के साथ? माय गॉड, एक्चुअली आई फेल्ट दैट कैमरा भी चार्ज हो जाता था, पूरा ऑडियंस इतना चार्ज होता था। इनके आने से पहले ही इतने चार्ज हो गए थे। एंड व्हेन ही एंटर्ड, वो थोड़ा रन करके आते हैं बाहर से, करीबन से 50 मीटर या 25 जो भी है, वो दौड़ के आते हैं। और जब आते हैं तब जिस तरह से लोग खड़े हो गए, इतने चार्ज हो गए, क्लैपिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग इवन विसल बजा रहे थे, और उनको कहने के बाद भी रुकी नहीं रही थी अप्लॉज। तो पूरा का पूरा चार्ज हो गया था। तो वो तो पूरा 4-5 घंटा महसूस किया, और बाद में तो आमने सामने, मतलब 1 फुट के अंतर से बात हुई। तो रेगुलरली मेकअप से नहीं, एक्चुअली ऑरा चमक रहा है इनका, और ये जो एनर्जी है वो चारों ओर जा रही है। तब समझ में आता है कि किसी को महानायक कैसे बोले। खाली एक शूटिंग की बात नहीं है, जिस तरह से वो बाकी लोगों के साथ पेश आते हैं वगैरह, इट्स माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। अब हमने ये तो जान लिया कि अमिताभ बच्चन जी के साथ इनके क्या अनुभव रहे हैं, और इससे जुड़े और भी कई सवाल मैं आगे पूछूंगी। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं जो किताब अमिताभ जी को इन्होंने गिफ्ट की है, इनकी लिखी हुई चक्र संहिता। तो उस किताब के बारे में जानेंगे कि वो किताब में आखिर क्या क्या चीजें हैं, क्या है वो किताब, और साथ ही अमिताभ बच्चन को ये किताब गिफ्ट करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, क्या है ये पूरी कहानी में बताइए सर। एक्चुअली आपने शुरू किया था एनर्जी की बात से जी। तो पूरा जो बॉडी है, पूरी लाइफ, वो 7 एनर्जी सेंटर्स में कवर्ड है। राइट फ्रॉम कंसेप्शन, नॉट बर्थ, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, हमारी लाइफ में जो भी होता है वो 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स में होता है। और वो एनर्जी सेंटर्स को प्लेक्सस बोलते हैं, चक्र भी बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई ऑथेंटिक, मतलब या तो बहुत ही हाई स्पिरिचुअल भाषा में बातें हैं तो कोई पढ़ता नहीं है, और या तो बहुत प्राइमरी है। तो एक्सपीरियंस बेस किसी के पास इतना नहीं है। मेरा कुछ सौभाग्य हुआ, एक्चुअली तब दुर्भाग्य मानता था। एक रेमसे सिंड्रोम करके मुझे एक डिजीज हुआ 1998 में। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स और इवन लंदन के टॉप डॉक्टर्स, दे सेड यू विल नेवर रिकवर। बहुत ही खराब कंडीशन थी, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बट
हर प्रकार की मोडालिटीज यूज कर ली, लेकिन साथ साथ में उस टाइम में एनर्जी फील्ड में आ गया, रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया और तब से एक पूरी नई दुनिया खुल गई। तो इसके पीछे पता चला कि पूरी लाइफ, पर्सनालिटी, हेल्थ, आवाज की क्वालिटी, आई मीन ऑल इमोशंस, कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरी हेल्थ, मेरी लाइफ में डेथ तक बहुत अच्छी रही, बट नोबडी कैन से कि मुझे कोई इमोशन नहीं आए थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक इमोशन भी कोई ना कोई एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड है। तो जो हमारी जो फैमिली फ्रेंड है उसको ये सब पता है, बिकॉज शी वाज इन्वॉल्व विद दिस बुक। तो उसने मुझे सजेस्ट किया एंड इमीडिएटली आई टुक अप द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे भी बहुत सी बार इनका पढ़ता था तो लगता था मुझे कि ऐसे लोगों का, चक्रों का हमारे हिसाब से, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालिसिस करना चाहिए। ये इतने पास में से करने का मौका मिलता है, व्हाई नॉट टू डू। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा इन्होंने कहा कि एक अनुभव, एक मौका मिला उन्हें कि वो सामने सामने जाकर उनके चक्रास के बारे में, उनके एनर्जीज के बारे में जान सके। तो हम और आप, हम सभी बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इन्होंने क्या महसूस किया है अमिताभ बच्चन के साथ में, जो उनके जो चक्रास का रीडिंग या एक अनुमान आपने लगाया, तो उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। मैंने जो ये 3-4 घंटे में महसूस किया, प्लस व्हाटएवर इज ऑलरेडी इन मीडिया, हम पढ़ते रहते हैं इनके बारे में, वो सबको मिला के जो एनालिसिस किया वो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। There are 7 चक्रस। सबसे नीचे है उसको रूट चक्र बोलते हैं या मूलाधार चक्र बोलते हैं। उसको मतलब नीचे का हाफ बॉडी उसके साथ कनेक्टेड होता है। एंड सेकेंडली सिक्योरिटी की भावना, ग्राउंडेडनेस, वो सब उसके साथ कनेक्टेड है। एक ऐसी व्यक्ति की जिसकी फेम दुनिया भर में है, जिसके लाखों लोग दीवाने हैं, जिसके फेसबुक के फॉलोअर या कहीं भी फॉलोअर्स देखो तो पागलों की तरह, ऐसी व्यक्ति, वेल्थ के हिसाब से हम सबको पता है कि क्या होगी, इनको एक अंदाज सबको है। ऐसी व्यक्ति हवा में चलती, हम बोलते हैं ना, उसकी जगह पर ही वाज सो ग्राउंडेड, हर एक के साथ एकदम गरीब, ऐसा नहीं कि कंटेस्टेंट के साथ, जो भी आदमी वहां जो ऑडियंस में था, इनके साथ भी जो बात कर रहे थे, जो भी बात मीडिया में भी बात आ रही, और जो भी इनकी बॉडी लैंग्वेज से फील किया, दैट वाज वेरी क्लियर कि एक बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द रूट चक्र। इसके बाद आता है सकराल चक्र, यानी कि स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, पैशन के साथ कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, इमोशन के साथ कनेक्टेड है। इनकी क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहना, सबको पता है, हर प्रकार के रोल किए। रोल तो एक बात हुई, ये इतनी अच्छी तरह से ये कभी सी 25 साल से चला रहे हैं। अगर गीत गाना है तो वो भी गा सकते हैं, मतलब किस प्रकार से, कोई बात नहीं है कि वो नहीं, वो लिख भी सकते हैं, कविताएं भी लिखते हैं इनके फादर की तरह। तो क्रिएटिविटी की भी एक हाइट है इनकी। इमोशन की बात हुई तो जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो सबसे, हम स्क्रीन पर तो देखते हैं, लेकिन स्क्रीन पे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी आदमी शो करता है, बट स्क्रीन से नीचे उतर बाहर निकलने के बाद भी तो वे एक एक के पास जो फर्स्ट लाइन में थे, इनको जिस तरह से मिले, इमोशनली जिस तरह से कनेक्ट हो रहे थे, सो दैट वाज शोइंग दैट इट्स अ पॉइंट। अगर शायद कोई कंपटीशन होगी ना तो बाकी कोई तो ऐसे ही रिजाइन कर देंगे इनके सामने। थर्ड होता है सोलार प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होती है। एंड इमोशन की बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, वो पूरा का पूरा इनके साथ कनेक्टेड होता है। नाउ ऐसी कौन सी व्यक्ति होगी कि जो मरने पड़ी हो कुली के एक्सीडेंट के टाइम में, और इसमें से बाहर निकले, फाइनेंशियली टोटली खाली हो जाए, कोई सुसाइड कर ले ऐसे टाइम पे। कहीं पढ़ा था कि एक दूध वाला ने अचानक दूध देना बंद कर दिया, क्यों? तो पैसा आएगा कि नहीं पता नहीं है, कहीं पढ़ा था मैंने, इसके बेस पे बता रहा हूं। एंड बाकी सबको पता है कि फाइनेंशियली पास थ्रू बैड टाइम। तो इसकी बजाय वो सब चैलेंजेस को तोड़ के अपने विल पावर से फिनिक्स की तरह बाहर आए। सो मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस इज फैंटास्टिक। सबसे मिडिल का चक्र होता है हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। जब आदमी को सेल्फ लव है तब बाकी के लोगों को लव कर सकता है। वो पूरा का पूरा वहां देखा, एकदम बैलेंस्ड। एक एक ऑडियंस में से कोई भी कुछ बोले तो सामने हाथ
बहुत सी चीज तो एडिटिंग में कट जाती है, लेकिन हमने नजदीक से देखी तो जिस प्रकार से सबको वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वहां के स्टूडियो में सबकी इंस्ट्रक्शन थी कि ऑडियंस भगवान है और इनके साथ प्यार से ही बात करनी है। और बहुत से जो लोग बाकी के कॉन्टेस्टेंट जो साइड में होते हैं, मेन कॉन्टेस्टेंट हॉट सीट वाला नहीं, इनके साथ भी जिस तरह से मजाक मस्करी कर रहे थे, जो इसमें नहीं आएगा शायद केबीसी के शूट में, तो वो सबको कॉन्फिडेंस दिला रहे थे, स्ट्रेस फ्री कर रहे थे। वो सब रियली जिसका हार्ट चक्र बहुत पावरफुल हो, सबको दिल से लव करता है, वही कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। देन कम्स थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, आवाज की क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, हिज वॉइस इज आइकॉनिक, एवरीबॉडी नोस। आवाज की क्वालिटी, लाइफ में सक्सेस, ऑरेटरी, वो सब का सब विशुद्धि चक्र की क्वालिटी के साथ जाता है। तो मुझे लगता है कि बोलना ही क्या है इसमें, आवाज हम जानते हैं, इनकी सक्सेस हम जानते हैं, इनकी ऑरेटरी हम जानते हैं। सो दैट वाज अ कंप्लीटली बैलेंस चक्र। बाद में आता है, और ये ENT वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो सब विशुद्धि चक्र के डॉक्टर्स माने जाएंगे। इसके बाद में आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र बोलते हैं, और आज्ञा चक्र के न्यूरो सिस्टम के साथ लेना देना है। बहुत से लोग अब जब अल्जाइमर के वगैरह के डिजीज के शिकार बन रहे हैं, डिमेंशिया के, ऐसे पॉइंट पे, इस एज पे हर एक पॉइंट पे ध्यान देना, एक छोटी सी चीज भी साइड में नहीं जाती थी, इंस्टेंट जवाब देना, और वो भी इतना वीटी ह्यूमरस होते थे, सबके साथ जिस तरह से बात हुई थी, इतना फोकस्ड रहना इतने टाइम तक, वो आई थिंक इट्स यूनिक बाय ऑल मीन्स। तो इनका आज्ञा चक्र भी इतना परफेक्ट हुआ। सबसे ऊपर का क्राउन चक्र, उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन है। तो जो हमने पास में से भी देखा, दूर से भी देखा, दूर से मान लीजिए कि लाइट थी, लेकिन पास में भी हमने देखा। और सेकेंडली जो आदमी के 6 चक्र बैलेंस्ड हो सकते हैं, तो 7 तो कैसा होगा। ऐसा लगता था कि हमें शायद इतना पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता था कि डिविनिटी से जैसे उनकी हॉटलाइन थी। तो दैट इज द एनालिसिस व्हाट आई डिड बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस 25 इयर्स। मुझे ऐसा लगा, आपके सामने बता रहा हूँ। इन सभी बातों से आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि हमारी जिंदगी में चक्रास जो हमारी पर्सनालिटी को शो करते हैं और कई सारे रोल प्ले करते हैं, ये हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले कर सकते हैं। इसके साथ में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो मेरे ख्याल से हर किसी के मन में उठता है कि जो ऑरा, जैसा इन्होंने कहा अमिताभ बच्चन जी का है कि सारे चक्रस जब बैलेंस होते हैं तो इंसान ना सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान बनता है, बल्कि अपनी लाइफ में भी इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे शायद किसी चीज की कमी या होती नहीं है या महसूस नहीं होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में इन चक्रास को बैलेंस करना चाहें, अगर हम भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहें तो हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहुत से रास्ते हैं चक्र को बैलेंस करने के लिए। इनफैक्ट मेरी ये चक्र संहिता ग्रंथ में मेरी कोशिश यही रही है कि सिंपल लैंग्वेज में इनडायरेक्टली लिंक के साथ सबको मिल जाए रास्ता कि कैसे कैसे मेरा चक्र बैलेंस करे और मेरे चक्र की स्थिति क्या है। सो आई टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट दैट। एकदम नया कोई आदमी है तो पहले सेक्शन में 4 पार्ट में 4 चैप्टर में पता चलेगा ओरा क्या है, कुंडली क्या है, नाड़ी क्या है, चक्र क्या है। दैट इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोई भी। और इसमें फोटोग्राफ्स के साथ ओरो की फोटोग्राफ ले सकते हैं। ओरा की फोटोग्राफ के लिए स्पेशल किलियन कैमरा आते हैं। एंड सेकेंडली ओरा का फोटोग्राफी से ये पता चलता है कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कौन सा डिजीज होने वाला है, वो पहले से पता चलता है। डॉक्टर को बाद में पता चलता है, हमको पहले तो पता नहीं चलता, डॉक्टर को भी नहीं चलता। बाद में जब एडवांस स्टेज पे कोई डिजीज चला जाता है तब पता चलता है। ये इसमें पहले से आ जाता है। आसपास की एनर्जी कैसी है सब कुछ पता चल जाता है। तो दैट इज फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में चक्रों के बारे में इन डेप्थ है। तो पहला, हर एक चक्र के 2 चैप्टर्स। तो पहले चैप्टर में ये लिखा होगा कि ये चक्र क्या है, बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है, अगर ओवर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, अंडर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, हमारा खुद का चक्र कैसा है, क्वेश्चनर का अगर फ्रैंक जवाब देंगे तो वो मिल जाएगा, इसका कलर कैसा होता है ये चक्र का, इसका मंत्र क्या होता है। पृथ्वी के भी चक्र होते हैं साथ, तो वो पृथ्वी का वो पर्टिकुलर चक्र किधर है,
So that is all in the first chapter of that second section. सेकंड में आपने जो जवाब क्वेश्चन पूछा उसका पूरा जवाब मिल जाएगा. सेकंड में बहुत ही सिंपल चीज से शुरुआत की है कि कलर थेरापी, सपोज कौन से कलर यूज करेंगे तो कौन सा चक्र हमारा बैलेंस होगा. देन डाइट, कौन सा फूड खाने से, हमारे रेगुलर फूड में इंक्लूड करने से हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा या बैलेंस होगा. अगर ओवर एक्टिव है तो डाउन आएगा. तो दैट इज सेकेंड पार्ट. थर्डली मंत्र, छोटा सा मंत्र होता है उसका, तो वो मंत्र का. चौथा इसका साउंड थेरापी है. साउंड थेरापी 5 प्रकार का लिखा है. एक तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक मतलब वी हैव नॉट टू बी एन एक्सपर्ट. मूवी के भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो क्लासिकल राग पे बेस्ड है. तो हर एक चैप्टर में वो लिखा है कि कौन से सॉन्ग सुनेंगे तो आपका कौन सा चक्र बैलेंस होगा. दैट इज फर्स्ट पार्ट. एक सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी होती है जो यूरोप में 12th-13th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर थी और बाद में समहाउ चली गई थी, किसी का ध्यान नहीं था. 40-50 साल पहले रिवाइव हुई है. वो बॉडी में पेन से लेके हर एक पॉइंट पे खाली ये बचता रहना चाहिए, तो वो सल्फेजियो फ्रीक्वेंसी के लिंक के साथ दिया है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइनोरल बिट्स. जो लोग इजीली मेडिटेशन में नहीं जाते हैं तो अगर हेडफोन लगा के वो बाइनोरल बिट्स सुन ले तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में चेंजेस आने, न्यूरो सिस्टम में नए पाथ बनते हैं. तो बाइनोरल बिट्स के दिए हैं. काफी लोगों को पता होगा हिमालयन बोल्स आते हैं, तो वो हिमालयन बोल्स का फ्रीक्वेंसी के साथ वो चक्र का दिया. दैट इज अबाउट साउंड थेरापी. इससे भी सिंपल अरोमा थेरापी. कौन सी अरोमा घर में होनी चाहिए. सपोज एक डिफ्यूजर लगा दिया और अरोमा चालू कर दी वो पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल की, तो एकदम चेंज आ जाता है. तो अरोमा थेरापी. उस चक्र को कौन से योगासन लागू होंगे. योगासन हर लोग नहीं कर पाएंगे, सपोज बड़ी उम्र के नहीं कर पाए, तो कौन सी मुद्रा कर पाएंगे. मुद्रा तो हाथ को अरेंज करना होता है, दैट्स वेरी इजी. तो मुद्रा की है. फिर ये सब हुई एंसेंट बात है. अभी मॉडर्न की बात करते हैं. एफर्मेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मेरा इसमें है क्वालिफिकेशन. तो एफर्मेशन कौन से होने चाहिए इसके लिए, वो परफेक्ट चक्र के लिए दिए. कौन सा विजुअलाइजेशन करना चाहिए वो दिए हैं. हर एक चक्र एक बेसिक फंडामेंटल जो पंच महाभूत बोलते हैं ना, उससे कनेक्टेड है. तो उस तत्व को जो चक्र से कनेक्टेड तत्व है उसको कैसे बैलेंस करे वो भी इसमें है. एंड फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक थॉट की हर एक अलग अलग चक्रों पे इफेक्ट होता है. तो हमारे कौन से थॉट के हिसाब से ये हुआ है उसका पूरा अदर रेमेडीज करके लिखा है. और वो थॉट को अगर अभी सपोज मुझे बहुत क्रोध आता है, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या, वो सब प्रैक्टिकल रेमेडीज उसमें दे दी है. सो दैट इज अबाउट ऑल द रेमेडीज हाउ वी कैन बैलेंस द चक्र. और बाद में एक लास्ट सेक्शन है छोटा सा 3 चैप्टर का. इसमें हमारे विचारों और हमारे शब्दों की पानी पे क्या इफेक्ट होती है वो साइंटिफिकली बताया है. बॉडी में 70% वाटर है, तो इसकी हमारे बॉडी पे क्या इंपैक्ट होती है वो साइंटिफिकली बताया है. उसके बाद में जो ये हीलिंग मोडालिटीज है वो एक चैप्टर में उनके एक्सप्लेनेशन दिए और बाद में समरी है. सो एवरीथिंग कवर्स इन दैट पार्ट. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक बैलेंस्ड लाइफ अपने लिए क्रिएट करें तो आप चक्र संहिता जरूर बाय कर सकते हैं. अब हम ये जान लेते हैं कि इस किताब को कहाँ हम खरीद सकते हैं, कहाँ ये अवेलेबल होगी सर. हर एक सिटी में अलग अलग लोग हैं, बट बेटर यू कैन डू वन थिंग. यू कैन टेक माय नंबर, यू कैन नोट डाउन माय नंबर and connect with me. I'll put you in the particular group. 7984581614. मैं रिपीट कर रहा हूं 7984581614. तो आप में से जो कोई भी इस किताब को खरीदना चाहता है, जो कोई भी जानना चाहता है चक्रास के बारे में, वो सीधे सीधे इनसे अब कांटेक्ट कर सकते हैं और किताब खरीद सकते हैं. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इनका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इनके जो अनुभव है, साथ ही साथ इनका जो नॉलेज है वो हमारे साथ में शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. वहाँ का मैंने एक एक्सपीरियंस जरा उसके टीम के बारे में बताना चाहूँगा जी. हम सपोज 9 बजे गए तो 2 घंटे प्रोसेस है. वो प्रोसेस के बाद में जब हम स्टूडियो में गए तो वहाँ की टीम को भी किस तरह से इन लोगों ने, मतलब अमिताभ सर की इंस्ट्रक्शन से
कैसे सब बिहेव करते हैं वो आपको कहना चाहूंगा। कुछ जो यूनिक बातें हैं वो तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब मॉडेस्ट थे, वो तो कॉमन है, बहुत सी जगह पे मॉडेस्ट होते हैं सब, लेकिन मॉडेस्टी की हाइट कुछ बताता हूँ, सपोर्ट की हाइट कुछ बताता हूँ। ऐसा होता है कि 3 रोज है, राइट साइड में 3 रोज, लेफ्ट साइड में 3 रोज और सामने सब स्पॉन्सर वाले लोग होते हैं। राइट साइड की 3 रोज में फर्स्ट रो में मेरा नंबर था, फिर एक छोटी सी बैरियर होती है, बैरिकेड जैसा, और बाद में अमिताभ जी आते हैं, वो सब होता है। लास्ट में जब खत्म हुआ तो अमिताभ जी पहली रो में बैरियर की दूसरी साइड पे, मतलब हार्डली 1-1.5 फीट की 2 फीट के अंतर पर, वहां से सबके पास निकलते हैं। तो पहली जो रो में जितने लोग हैं उनके पास खड़े रह के वो बैरियर पे हाथ रख के वो फोटो निकालते हैं। तो कम से कम ऐसी 70 रो होगी या 60 रोज होगी। तो इतना फंक्शन करने के बाद में वो इतना टाइम देते हैं। आज तक मैंने कोई सेलिब्रिटी ऐसा, बहुत से सेलिब्रिटी से मिला हूं, लेकिन ऐसे सेलिब्रिटी को किसी को देखे नहीं कि जो सामने से लोगों की फीलिंग की इतनी कदर करे। फिर इसमें क्या हुआ कि जो बुक मेरे पास रखी थी तो किसी का पांव थोड़ा टच हो गया, तो पांव टच हो गया तो जो बैरियर थी हम लोगों ने सोचा था कि पक्की बैरियर है, बट एक्चुअली वो क्लॉथ की बैरियर थी और नीचे कुछ लाइट्स की अरेंजमेंट थी। तो बुक्स लास्ट मोमेंट पे जब इन्होंने मिलना चालू कर दिया तब नीचे चली गई, कहीं कहाँ गई पता नहीं, मतलब मिलने की कोई आशा नहीं थी। तो जिसके लिए गए थे वो तो बात ही उड़ गई और सब लोग बिजी हो गए थे ये सब सेट अरेंजमेंट करने में। फिर भी मैंने एक आदमी को टीम में से पकड़ा कि प्लीज मुझे, हाँ ऐसा चली गई है और बुक इनको देनी है। तो बोले ठीक है। फिर वो तो काम करने लगे। मैंने बोला ये तो अभी पास आ रहे हैं, फिर से बुलाया, बोला नहीं कोई नीचे गए हैं। एंड इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज, इट वॉज अ मिरेकल रादर, कि जब अमिताभ जी मेरे पास आ रहे थे, मेरे से 2 सीट आगे थे, तब मेरे पास वो दोनों बुक्स नीचे से कोई लेके आके दे गया। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सेकेंडली, आज तक हमने ऐसा देखा है कोई भी प्रोग्राम में कि अगर ब्रेक पड़े तो ब्रेक के अंदर हम पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, वाटर की व्यवस्था होती है। ये एक ही जगह ऐसा देखा कि सबको फ्लास्क में वाटर दे रहे थे, एक एक आदमी को, कितने सारे को। सो दैट वाज आल्सो ग्रेट। हर प्रकार से दे वर ट्राइंग टू बी वेरी 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 पोलाइट। एंड एक बात ये भी है, इनकी जो एनर्जी थी, एक उस उम्र पे लोगों को चलने की भी तकलीफ होती है, तब दौड़ के आना ठीक है, चलो, आने के बाद जरा भी ब्रीदिंग में कोई चेंज ना आए, ऐसे वहां से बैठना, 5 घंटा ऐसा, 4 घंटा ऐसे निकल गया। इसके बाद में हम तो निकल गए, ओके, लेकिन इसके बाद में बाकी सबके जो ऑटोग्राफ थे वो इन्होंने किए होंगे। एंड देन सेकंड राउंड वाज स्टार्टिंग, दैट मींस 7:30 और 8 से वो शुरू करते हैं, इज वर्किंग अप टू 11:30। तो दैट वाज समथिंग सो इंस्पिरेशनल, आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही खास अनुभव है, ना सिर्फ ऐसे व्यक्तित्व को मिलना जिससे देश दुनिया में महानायक के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ ऐसी ऊर्जा को महसूस करना, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे सिर्फ हमारा नाम लोगों के बीच में मशहूर ना हो, बल्कि हमारी एक छाप छुट जाए सभी के दिलों में। और हम सब ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना चाहते हैं। और अगर आप भी अपने आप की पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, तो हमने जैसे आपको कांटेक्ट दिया, आप बुक मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ रोजमर्रा के जीवन में जो चेंजेस अपनी जिंदगी में आप लाना चाहें, उससे छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं और कुछ ऐसा व्यक्तित्व अपना बना सकते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करे। बस यही कोशिश रहती है हमेशा वीएनएम टीवी की भी, और हमारे जितने भी खास मेहमान होते हैं वो सभी आपको यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे आज जितेंद्र पटवारी जी ने दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। फिर लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. हेलो नमस्ते, केम छो। 2018-19 के बीच में मैंने स्टार्ट किया था। वडोदरा में मुझे आई गेस पता नहीं है कि तब इन्फ्लुएंसर्स थे भी या नहीं। अभी ये कल्चर थोड़ा चेंज हो गया है। पहले न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, अब हमारे थ्रू ऐड होती है। पहले लोग मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन अब तो एक बन गया कि चलो इन्फ्लुएंसर भी एक अच्छी पोजीशन है। और आपको खाना खाने का शौक है कि खाना बनाने का भी शौक है? दोनों का शौक है। मुझे खाना इतना ही अच्छा बनाना आता है। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट मैं ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे सब पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद। आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन लेने का तरीका और देने का तरीका काफ़ी बदल गया है। जैसे हम वडोदरा को पहले गायकवाड़ राजाशाही के नाम से जानते थे, लेकिन अब वडोदरा है उसकी अलग ही पहचान पूरी दुनिया के सामने आ रही है, और वो है जो वडोदरा का फूड है वो। क्योंकि वडोदरा का जहाँ एक और गुजरात के फूड देश भर में प्रसिद्ध है और कई फिल्म्स में भी आपने काफ़ी पॉपुलैरिटी देखी होगी गुजरात के फूड की, तो वहीं जो यहाँ की और भी क्विजीन है जैसे थाई, इंडियन, चाइनीज़, ये भी वडोदरा में आजकल काफ़ी चर्चे का विषय बन जाती हैं। और जो इन फूड को प्रमोट कर रहे हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, यानी फूड इन्फ्लुएंसर की। क्योंकि भाई हमारा वडोदरा शहर है, वडोदरा के नवरात्रि फेमस है और यहाँ का जो गरबा है वो फेमस है, तो यहाँ का फूड भी उतना ही पॉपुलर है। तो जो फूड इन्फ्लुएंसर हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM TV पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर, जहां पर हम आपको इन्फ्लुएंसर से मिलाते हैं और उनकी जो जर्नी है उसके बारे में बताते हैं, और कई सारी जो करंट में चीज़ें चलती हैं, जो अवेयरनेस है उसके बारे में हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और आज हमारे सामने बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर शो में जूही पटेल जी जुड़ी हुई हैं, और सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगी। जूही पटेल जी, आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। और अब फूड इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने कई सारे आपके वीडियोस देखे हैं और आप इंस्टाग्राम पे जूही के पटेल के नाम से बहुत ही पॉपुलर हैं। यस। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में? बहुत अच्छा लगा। वैसे ये मेरी टैगलाइन है तो मैं बोलना चाहूंगी, हेलो नमस्ते, केम छो। अब वडोदरा आए और केम छो से आपका पाला नहीं पड़ा तो क्या हुआ? मतलब अगर मैं कहीं अपने शहर जाती हूँ या फिर मेरी किसी से बात होती है, हाँ। तो वो भले ही गुजराती ना हो, लेकिन एक चीज वो मुझसे जरूर गुजराती में पूछता है, हाँ सुहाली केम छो। मतलब उनको वही आता है। कोई भी एक्टर आते हैं बॉलीवुड के तो शुरुआत यही से करते हैं, केम छो वडोदरा, केम छो बरोड़ा। मतलब वो केम छो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अपने गुजरात का। सबसे पहले जूही जी, आप
आपकी जर्नी के बारे में, मतलब कहाँ कब ये पेज स्टार्ट किया था और आपको कब से फूड ऐसा टैग, मतलब आपको मन में कब आया कि नहीं ये जर्नी अच्छी है? क्योंकि आजकल आप जेंजी हैं और आजकल जो है मतलब सबका फोकस अपने करियर पे होता है, लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, लेकिन ये जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी हटके है। तो आपने कैसे सोचा कि इस फील्ड में जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जेनजी नहीं हूँ मैं 97 बॉर्न हूँ, सो बीच में आ जाता है। एंड मैंने जर्नी कब स्टार्ट की, मैं जब सेकंड ईयर में थी मैंने किया है फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो मेरा फूड का तो वैसे भी लगाव था ही। तो मैंने वडोदरा में, मुझे आई गेस पता नहीं है कि तब इन्फ्लुएंसेस थे भी या नहीं, 2018-19 के बीच में मैंने स्टार्ट किया था, कोविड से पहले। तब इतना ना यहाँ पे वडोदरा में इतना ब्लॉगिंग का कल्चर नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है भी या नहीं। मैंने सिर्फ सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली एंड मुंबई के मैं 2-3 ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए यहाँ पे भी। तो मेरे भाई हैं, उनसे मैंने बात की कि चलो ना कुछ ऐसा करते हैं। तो और एक मेरा मतलब वो कंटेंट राइट करता था एंड मेरे साथ एक पार्थ करके है, वो फोटोग्राफर था। तो हमने एक टीम बनाई कि हम तीनों साथ में जाते थे। एक कैफे से हमने बात किया, वो एपेटिटो करके था समा में। तो वहाँ पे हम पहले उनसे बात की, परमिशन ली कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उनको भी आइडिया अच्छा लगा कि ठीक है आप आना। एंड देन हम वहाँ पे गए, उनका फूड रिव्यू किया एंड तब से हमने जर्नी स्टार्ट की। तो लकीली वो जो कैफे था, उन जिनसे बात हुई थी उन मतलब वो डिजिटल मीडिया में ही था, तो उनकी मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे ही। तो उन्होंने हमें और 3-4 कैफेस दे दिए कि आप वहाँ पे भी जाओ, और ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब 3-4 साल हो चुके आपकी हाँ, जर्नी हो को गए अभी। हैं। अगर आप किसी से मिले और आप उनको बताती है कि हाँ मैं फूड ब्लॉगर हूँ, हाँ, तो लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है आपसे? अभी तो सबको पता ही है, क्योंकि सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। मतलब पहले ऐसा था कि अखबार में ऐड आती थी कि हमें यहाँ पे कुछ नया खुला है, लेकिन अब सब इंस्टाग्राम पे देख के जाएंगे कि कहाँ पे जाना चाहिए। जाने से पहले वो पेज चेक करेंगे कि कहाँ जाए, या फिर डीएम करेंगे कि कहाँ जाए। तो अब ये कल्चर थोड़ा चेंज हो गया है। पहले न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, अब हमारे थ्रू ऐड होती है। हाँ वही, आजकल इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है कि लोग हाँ, न्यूज़पेपर से ज्यादा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले लेते रहे हैं हैं। एक्चुअली। और जो ही आप इन्फ्लुएंसर है, तो आपको कभी चैलेंजेस तो आए होंगे। हाँ। हर फील्ड में चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो आपको कब लगा कि नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपका कभी कभी मन भी क्या होगा इस चीज से क्विट करने का? तो वो कौन सा दौर था आपके लिए? हाँ, कोविड जब हुआ तब मतलब पूरा शटडाउन हो गया था 1-2 साल के लिए, क्योंकि सब बाहर जाते नहीं थे। हमारे पेरेंट्स भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि कोविड का रिस्क तो था ही। तब ऐसा लगा कि अब क्या करना चाहिए, पर उस टाइम कुछ था ही नहीं। तो उस टाइम मतलब और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं हमें भी अब तो कुछ करना। चैलेंजेस बढ़ गए, मतलब क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए कोविड के टाइम में, क्योंकि सब घर पे ही थे, तो सब रेसिपी बना के डाल रहे थे, सबका मतलब बहुत हो गया। तो चैलेंजेस में कहूँगी कि जब इंस्टाग्राम पे रीच नहीं आती, मतलब सोशल मीडिया पे आप जितना भी अच्छा कंटेंट डालो, बट आपको रीच नहीं मिलेगी, तो वो डिमोटिवेट कर देगा कि रीच नहीं आई, इतनी मेहनत की। तो वो एक हो रहा था। बट लकीली जब कोविड हुआ उसके बाद इंस्टाग्राम ने भी बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम करके उन्होंने मतलब एक लॉन्च किया, जिसमें वो इन्फ्लुएंसर को गाइड करते थे कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, कब रीच कैसे बढ़ती है। तो उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। एंड देन अब तो हमारे मतलब मोदी जी ने भी क्रिएटर्स अवार्ड रखा था। सो अब पहले लोग मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन अब तो एक बन गया कि चलो इन्फ्लुएंसर भी एक अच्छी पोजीशन है। अच्छा, एक और चीज मैटर करती है इन्फ्लुएंसर में, मतलब उसके लुक्स वगैरह। ऐसा नहीं है। जब बात फूड की हो तो फिर कैसे मेंटेन करती है आप? क्योंकि हम हम नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो कुछ खाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं यार हेल्थ खराब होगी। हाँ, नहीं, और वो आप तो लोगों होती का है। तो डेली का रूटीन ही ऐसा होता है, फिर कैसे मेंटेन करते हैं आप हेल्थ? आपने मुझे पहले देखा नहीं है, मैं बहुत पतली हुआ करती थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अब तो मेरा भी मतलब मुझे सब यही बोलते हैं कि आप इतना खाती हो तो बढ़ती कैसी नहीं हो। मेरे को पहले मैं बहुत पतली थी, अब हो गया वेट गेन। बट
मैं अकेली नहीं जाती, मेरे साथ सब लोग होते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ कि सब मैं नहीं खाती, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ही होता है, तो हो जाता है। मतलब मेरे साथ मैं 4-5 लोगों को लेके ही जाती हूँ कि वो खाना खाने लगे के लिए। और मैंने ये स्टार्ट किया था कि क्योंकि कहीं पे भी जाओ रेस्टोरेंट में, तो उनको तो वैसा ही होगा कि हमारा आप ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, तो वो पूरा टेबल भर ही देते हैं कि आप इतना खाओ, इतना खाओ। तो मैंने स्टार्ट किया कि मेरे से इतना तो खत्म वैसे भी नहीं होने वाला, और मेरी टीम भी कितना ही खाएगी। तो मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे रखा था, मतलब कि जो एक्टिव हो गए इन फॉलोअर्स, उसको मैं रैंडमली किसी को मैं पिक करती हूँ और उनको साथ में ले जाती हूँ, तो उनका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे है। तो ऐसे में कोई भी रैंडमली एक फॉलोअर को बुलाती हूँ और वो उसको साथ में लेके जाती हूँ। अच्छा, ये ऑफर अभी भी है? हाँ, आप आ सकते हो। मैं जरूर आना चाहूंगी आपके साथ, मतलब खाने के लिए नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए कि आप करते कैसे हो ये। नहीं, आप खाना खाने के लिए भी आ सकते हो। जो ही आपको हाल ही में एक अवार्ड भी मिला है जो नेशनल लेवल का है, हाँ, उसके बारे में बताइए। मुझे एक इफ्बा करके है, वो अवार्ड सेरेमनी वैसे मुंबई में ही होती है, बट इस बार उन्होंने गोवा में होस्ट की थी। गोवा में ताज है, वहाँ पे की थी, तो हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे पूरे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स थे और उन्होंने नॉमिनेशन किया हुआ था। देन वोटिंग सिस्टम भी हुआ था, 2 दिन के लिए वोटिंग लाइन्स खुली थी, जिसको वोट्स जैसे मिले ऐसे उनको अवार्ड्स दिया गया था। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब नॉमिनेट हुई थी मैं। तो मैंने जो इटरी रिव्यूज में मैंने कैटेगरी में मैंने नॉमिनेट हुई थी, तो उसका तो मुझे अवार्ड मिला ही मिला, बट मुझे पब्लिक हाईएस्ट वोटिंग का अवार्ड मिला। वो सबसे ज़्यादा मुझे वोटिंग्स मिले थे, वो उनकी मतलब वहाँ पे। और क्या हुआ था, जब मैं स्टेज पे गई, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट आए हुए थे, पर मैं स्पेशली उनसे ही मिलने गई थी। उनका एक पेज है द YFL करके, योर फूड लैब करके, संजय कीर करके है। तो मेरे टाइम पे वही स्टेज पे आए अवार्ड देने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे उनके हाथ से मिलेगा। देन मैं जब स्टेज पे गई, तो उन्होंने मतलब एक गिफ्ट भी दिया हुआ था, एंड गिफ्ट के ऊपर अवार्ड रखा हुआ था। मैंने भी गिफ्ट पकड़ा, उन्होंने भी गिफ्ट ही पकड़ा हुआ था, तो अवार्ड मेरा गिर गया और टूट गया। तो मतलब उन्होंने बोला कि नहीं, आपको हम नया भेज देंगे, तो फिर ठीक है, पर मेरा अवार्ड टूट गया, तो मेरे पास मतलब फोटो खिंचाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं कैसे बताऊँ सबको कि मुझे अवार्ड मिला है ऐसा। तो फिर मेरे मम्मी पापा साथ में आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने बोला है कि वो नया दे देंगे हम। तो फिर हम जा ही रहे थे उठ के, और मेरा नाम फिर से अनाउंस हुआ, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। तो उन्होंने मुझे फिर दूसरा अवार्ड भी दिया। मतलब वहाँ पे मोस्टली सबको एक एक ही मिला था, मुझे 2 मिले। फिर वहाँ पे एक दूसरी ब्लॉगर भी आई हुई थी, वो कोलकाता से थी, मुझे उसका अवार्ड दिया कि आप फोटो तो खिंचवा लो ऐसा। तो मैंने ऐसे 2 पकड़ के रखा है, वो मेरा नहीं है एक, बट क्योंकि मेरा टूट गया था, वो उन्होंने मुझे अभी भेज दिया है, वो घर पे आ गया है। तो ऐसा रहा था। वहाँ पे बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे ब्लॉगर्स, एंड ऐसे वोटिंग बेस पे हुआ था। बहुत अच्छा लगता है ना जब हम कोई काम करते हैं और उसका अचीवमेंट हमें मिलता है, तो मतलब हमें तो खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश पेरेंट्स होते हैं। मैं उसी के लिए उनको लेके गई थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया, तो उनको कन्विंस करना, पहले तो ऐसा उनको पता ही नहीं था ना कि ये है क्या, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ओके ठीक है, आपको करना है तो कीजिए। क्योंकि सब पेरेंट्स वही बोलेंगे कि स्टेबल जॉब ढूंढ लीजिए, करियर में आगे क्या करोगे ऐसा, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब तो वो भी साथ में आते हैं, सब उनको भी पहचानते हैं। मैंने देखी आपकी स्टोरी, मतलब आप खुद ही फूड ब्लॉग करते हो, पूरी फैमिली को भी ले जाते हो, वो लोग भी रेटिंग्स देते हैं। एक्चुअली सब उनको भी पहचानते हैं, अब तो कहीं पे भी जाते हो तो उनको भी पहचान लेके अब जूही के मम्मी पापा हो ऐसा। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर तो मिलता होगा आपको? कहीं पे कहीं कहीं पे। तो जूही, अगर आप फूड इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो आप क्या होती, कैसे दिखती अपने आप को? मुझे प्रोफेसर बनना था। मेरी मम्मी टीचर है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि टीचिंग लाइन में जा पाऊँ, तो मैंने ऐसा सोचा था कि शायद हो पाए। तो पर उसके लिए मैंने 2nd ईयर से ही मैं ये स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने उस तरफ सोचा नहीं बाद में। और आपको खाना खाने का शौक है कि खाना बनाने का भी शौक है? दोनों का शौक है। मुझे खाना इतना ही अच्छा बनाना आता है। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट मैं ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे सब पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद। फिर भी मैं चाइनीज बोल पाऊंगी, जो स्ट्रीट चाइनीज होता है, वो पाव भाजी भी पसंद है ऐसा।
चलो जूही, आपके मैंने व्लॉग्स देखे हैं हाँ। और आप जो गुजराती फूड है उसके साथ साथ कई सारे अदर जो क्विजीन होती है उसको भी हाँ। काफ़ी पसंद करती हैं और कई सारे रिव्यूज़ भी किए हैं। हाँ। तो जो हमारे दर्शक हैं वो हमारा शो कंटिन्यूअस देखते हैं और बहुत सारे दर्शकों को खाने पीने का शौक भी होगा और उनको पता नहीं होंगी शायद चीज़ें, कौन सा जो क्विजीन है कहाँ अच्छा मिलता है, तो आपके द्वारा हम उन तक पहुँचाएंगे। पक्का। तो मैं एक क्विजीन का नाम लूंगी, आप हाँ। बताइएगा कि कहाँ कौन सी क्विजीन फेमस है। पक्का। तो हम भारत देश में रहते हैं तो सबसे पहले इंडियन क्विजीन जो इंडियन थाली हाँ। होती है वो कहाँ की तो फेमस है? हमारी यहाँ पे मैं काठियावाड़ी थाली से शुरुआत करूंगी। तो काठियावाड़ी किस्मत काठियावाड़ी है, वो तो फेमस है ही। महाराजा थाल करके है सुभानपुरा में, वहाँ पे वो अनलिमिटेड गुजराती थाली, काठियावाड़ी गुजराती थाली है, वहाँ की बहुत अच्छी होती है। SK केडी करके है, वो भी बहुत फेमस है, वो भरूच का है, श्री खोडियार काठियावाड़ी। वो भरूच में, मतलब वो गोवा में भी है। मैं गोवा में गई तो वहां पे थाली खा रही थी और वहाँ बहुत सारे इंडियंस, मतलब गुजराती ही होते हैं, तो वो तो वेजिटेरियन फूड ही ढूंढते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। अभी कहीं काठियावाड़ी फूड हमारा बाहर भी जा रहा है। मतलब मैं अभी US जाके आई तो वहाँ पे भी था काठियावाड़ी फूड का, मतलब रेस्टोरेंट था। सो मुझे अच्छा लगता है कि हमारा गुजराती क्यूजिन इतना आगे बढ़ रहा है। एंड वडोदरा में पहले इतना नहीं था, अब तो बाहर की क्यूजिन बहुत आ रहे हैं। तो आप नए नए रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको मल्टी क्यूजिन ही मिलेगा एंड फैंसी फूड मिलता है। मतलब अगर कोई मैक्सिकन खाने का शौकीन हो तो वडोदरा में कहाँ जा सकता है? मैक्सिकन के लिए आई विल सजेस्ट 7 हब्स करके है, वहाँ पे आपको इटालियन मैक्सिकन दोनों मिल जाएगा। एंड अभी नया नया स्टार्ट हुआ है यहाँ पे नटू भाई सर्कल है ना, वहीं पे है दोस ब्रोस करके है, वो US का ही चेन है बट अभी वडोदरा में खुला है, तो उसका बहुत अच्छा है। एंड एक फ्लेवर्स लैब करके गोत्री में है, उसका भी बहुत अच्छा है। और इटालियन, मतलब कई सारे लोग शौकीन होते हैं इटालियन खाने के। इटालियन मुझे भी बहुत पसंद है पिज्जाज। तो मैं पिज्जा स्टोर के बारे में बताऊंगी। तो पहले वडोदरा में क्या होता था, सिर्फ वही लाइक रेडी बेस होता है, उस पे सॉसेस लगा के देते थे। लेकिन अब तो यहाँ पे प्योर आपको नेपोलियन स्टाइल के मिल जाएंगे, US के स्टाइल, US स्टाइल पिज्जाज होते हैं, न्यूयॉर्क स्टाइल के, वो मिल जाएंगे। तो एक बुफाला करके है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे पिज्जा मिल जाएंगे। एंड गस्टोस करके है, ये गस्टोस की स्टोरी, गस्टोस या गुस्टोस करके है। तो उन्होंने ही सबसे पहले ये पिज़्ज़ा स्टार्ट किए थे, जो वुड फायर पिज़्ज़ाज आते हैं, वो हैंड टोस्ट करके बनाते हैं वो वाले। तो उन्होंने शुरुआत की थी, उनके पिज़्ज़ा अभी भी बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड देन ये बुफाला अभी अभी आया है, एंड पिज़्ज़ा वाला करके भी है, उनके भी बहुत अच्छे हैं। एंड पिज़्ज़ा स्टोरी करके भी है वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे पिज़्ज़ा मिलते हैं। चाइनीज आप शौकीन हैं? हाँ, मैं भी चाइनीज शौकीन हूँ काफी। तो चाइनीज मुझे रोड साइड का ज्यादा पसंद है। तो एक राजू चाइनीज करके है मल्हार पॉइंट पे, MN सोडा के सामने, वो मतलब मेरा फैमिली चाइनीज वाला है, ऐसा मैं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं बचपन से खाते आ रही हूँ। उनका तो मैंने नंबर भी ले रखा है, फोन कर देती हूँ मैं आ रही हूँ ये बना के रखना, और वो बना देते हैं। और अगर जैसे किसी रेस्टोरेंट की बात हाँ। करें, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि रोड साइड खाना पसंद नहीं करते हाइजीन की वजह से। हाइजीन चाइनीज, एक प्रॉपर चाइनीज का मैंडरिन करके है, यहाँ पे चकली सर्कल पे ही है, वहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा। एंड चाइनीज मतलब अब तो मल्टी क्यूजन ही होता है, तो आपको हर जगह पे मिल ही जाएगा, इसीलिए। और थाई, वैसे थाई के शौकीन बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन तो भी कुछ लोग हैं अभी भी थाई के शौकीन। हाँ, ये भी मैंडरिन में मिल जाएगा। एंड दी पैटर्न करके अभी नया हुआ है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। फिनका करके है, वहाँ पे भी मिल जाएगा थाई का। जो ही मैम है उन्होंने बताया है, तो इस स्टोरी को देखने के बाद वहाँ का जो क्विजीन है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल तो जो गुजराती फूड होते हैं वो नॉर्मल यहाँ पे मिल ही जाते हैं आपको, लेकिन ये ऐसे क्विजीन है जो खाने के शौकीन होता है उनको स्पेशली उस जगह पे जाके खाना बहुत पसंद आता है। तो जूही जी, आप वडोदरा में तो है ही, हाँ। फूड ब्लॉगिंग चलता है, और भी मैंने सूरत के भी वीडियोस देखे हैं। तो आपके हिसाब से शहर फूड पैराडाइज अगर आप किसी को बनाना चाहे तो कौन से शहर को चूज करेंगे आप?
स्ट्रीट फूड के बारे में बोलूंगी तो सूरत, वैसे भी एक कहावत है गुजराती में कि सूरत का जमण और काशी का मरण। तो मतलब सूरत के लोग खिलाते भी इतने प्यार से हैं, एंड वहाँ पे स्ट्रीट फूड का बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब हमारे वडोदरा में इतनी वेराइटीज़ नहीं मिलेगी जितनी आपको सूरत में मिल जाएगी। हमारे नाश्ते में हम बात करेंगे तो सिर्फ सेव उसल मिलेगा, या फिर मतलब बहुत लिमिटेड है वडोदरा में। इफ बात करें ब्रेकफास्ट में, सूरत में जाओ आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं सूरत का ही बोलूंगी क्योंकि सूरत का फूड बहुत अच्छा होता है, एंड मैं हूँ भी सूरती तो थोड़ा अच्छा, आप biased। सूरत से हैं। मतलब पहले वडोदरा से ही रहती हूँ, वडोदरा में ही हूँ, बट सूरती हूँ मैं। तो चलिए मैं जरूर सूरत जाके वहाँ का फूड ट्राई हाँ, करूंगी। मैं पक्का। अभी गई नहीं हूँ सूरत, खास करके अब मैं खाने के लिए तो जरूर जाऊंगी कभी। जूही जी, ये तो हो गई खाने पीने की बातें, लेकिन और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे मैं जान सकती हूँ। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मिलेनियल वर्सेस जेनजी। लाइक अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है जेनजी के नाम से, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से अलग किया जाता है और आपको टॉन्ट भी मारा जाता है। आपने भी शायद फेस किया होगा ये कभी। हाँ। तो इन चीज़ों पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इनका। यस, मैं मेरा फिर से बता रही हूँ कि मैं जेनजी में नहीं आती, मैं भी मतलब गालियाँ देती हूँ उनको। क्यों ऐसा, मतलब गालियाँ नहीं देती, बट ऐसा क्या है कि हमारी जनरेशन 90s किड्स की बात करें तो वो बहुत स्टेबल थे, उनको इतनी ये करना है वो नहीं होता। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, हमें ये करना है, वो स्कूल तो जाते, स्कूल कॉलेज जाते हैं, साथ में कुछ जॉब भी करते होते हैं। वो अभी ट्रेंड आ गया है कि वो साथ में कुछ ना कुछ उनको करना है, बिजनेस में जाना है, खुद का करना है। वैसा हम पहले नहीं सोचते थे, हम सिर्फ जॉब करने के लिए, मतलब जॉब करके सेटल हो जाएंगे, यही हमारी थिंकिंग थी कि हमें बस डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये मैं टॉन्ट नहीं मार रही, वही अच्छी बात बोल रही हूँ कि उनको खुद का कुछ करना होता है। वो पहले से इतना एक्टिव हो जाते हैं कि हम ये करेंगे, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ये अच्छा है, बट उसका ड्रॉबैक भी बहुत ज़्यादा है। लाइक आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, तो हमारे टाइम में लाइक मम्मी पापा ने मना किया तो मना किया, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर वो बोल देते थे घर छोड़ के जाना चले जाओ, नहीं तो नहीं, मतलब ऐसा आंख दिखाते थे, हम मान जाते थे। टीचर्स भी हमें बोलते थे, मतलब टीचर्स को हमारे पेरेंट्स जाके कि मारना, इनको तो मारना ही ऐसा। अभी तो वो हाथ उठाएंगे तो पुलिस केस कर देते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा पैम्परिंग करके किड्स को बड़ा किया जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स आई कांट से कि मैं अभी पेरेंट नहीं बनी हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कैसा होगा आगे जाके, बट ये है कि आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन उनको सब पता होता है। मेरी नीज है, वो भी ब्लॉगर है अभी से। वो 5 साल की है, बट उनको सब पता होता है कि क्या है, कैसे पैसे आते हैं, ऐसा। 5 साल की उम्र में ब्लॉगिंग हाँ एक्चुअली। तो मुझे ये नहीं पसंद कि बच्चों को, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती है, मतलब अभी करना ही हो पड़ेगा क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है। पहले हमारे जमाने में इतना भी कुछ नहीं था, मतलब स्कूल जाके ट्यूशन जाके खत्म हो जाता था। अभी तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, डांसिंग क्लास के लिए जाओ, कराटे क्लास जाओ, एक्स्ट्रा क्लास ट्यूशन्स अभी से, मतलब 5-6 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। एंड अच्छा, आजकल के बच्चों में ये फोन एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जब रोते थे तो हमें तो आंख दिखाते तो बंद हो जाते थे कि रोएंगे तो फिर से 2 पड़ जाएंगे, ऐसा था। लेकिन अब तो रोए, फोन दे दो, वो चुप हो जाएगा। उनको सब पता होता है, यूट्यूब में से कैसे वीडियोस डाउनलोड करने होते हैं, सब पता होता है आजकल के बच्चों को। मतलब ये मोबाइल तो नहीं देना ही नहीं चाहिए कुछ साल तक, मेरा ऐसा मानना है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाँ एक्चुअली, मतलब वो जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वैसे कुछ बाहर जाके खेलेंगे या मिट्टी में खेलेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और ऐसा कुछ। तो मैं आजकल वही बोलती हूँ कि किसी की बहुत बीमार पड़ता है ना, मैं बचपन में आप मिट्टी में नहीं खेले होंगे इसलिए। क्योंकि आज वो बाहर जाते नहीं है, सिर्फ मोबाइल, टीवी या फिर गेम्स, वीडियो गेम्स ऐसे में ही बड़े होते हैं। तो
ये अच्छा नहीं है, उनको बाहर जाना चाहिए। बट अभी पहले सेफ्टी भी इतनी नहीं मतलब थी। हमारे ज़माने में हम कहीं पे भी चले जाते थे, पेरेंट्स मतलब मैं गांव में बड़ी हुई हूँ तो पूरे गांव में मैं घूमती रहती थी, कहाँ पे हूँ मेरे मम्मी पापा को टेंशन भी नहीं होती कि वो आ जाएगी घर पे रख जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत माहौल भी खराब बहुत खराब हो गया है। हम उनको मतलब नजर रखनी ही पड़ेगी कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, फैमिली वालों पे भी नहीं कर सकते। मैं तो ऐसा बोलूँ कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। अच्छा, जो ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फूड ब्लॉगिंग करने गई हो? हाँ। और फूड ब्लॉगिंग वैसे तो कभी कभी पेड भी होती है, कभी हाँ। नहीं, अक्सर पेड ही होती है। हाँ। तो ऐसा होता है कि आपको फेक रिव्यूज देने पड़ते हैं, ऐसा कभी फेक हुआ रिव्यूज आपके साथ? मैं मना ही कर देती हूँ। अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया और कुछ ऐसा हुआ तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ये अच्छा नहीं है, मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड जब हम गए होते तो इफ उन्होंने फूड दिया होता तो मैं पे कर देती हूँ कि हमें इतना मतलब ये क्योंकि मैं रिव्यू रखूंगी, मेरे से ऑडियंस जाएगी, उनको पसंद नहीं आएगा तो वो मुझे बोलेंगे, उनका भी पैसा वेस्ट हो जाएगा एंड वो मेरे पे नेक्स्ट टाइम विश्वास नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक बार उनका ऐसा खराब रिव्यू आ गया तो ऐसा होता है। तो इफ कुछ चेंजेस हो लाइक ऐसा सबको पसंद आए, देखो मैं सूरत से हूँ तो हमारे यहाँ पे गुजराती दाल जो होती है हम वहाँ पे गुड़ नहीं डालते, हमारी स्वीट दाल नहीं होती है, वो मुझे मीठी दाल नहीं पसंद, पर यहाँ को मीठी दाल ही पसंद है। अब मैं जाके ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे दाल अच्छी नहीं थी तो वो मेरा ओपिनियन रहेगा कि वो अच्छा नहीं था। बट वो तो मतलब आपको पसंद आए मुझे ना पसंद आए ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, मतलब तो वो मुझे सोच के बोलना पड़ता है कि कैसा था। पर इफ खाना बहुत ही बेकार हो ना अच्छा लगे तो मैं उनको बोल सकती हूँ। एंड कुछ चेंजेस हो तो मैं उनको बोल देती हूँ कि इसमें नमक ज़्यादा था, एंड नमक ज़्यादा था उसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पे रखूँगी कि खाना अच्छा नहीं था, तो वो तो मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, मतलब तो मैं दोनों साइड में मतलब वो बैलेंस करती हूँ। हाँ, क्योंकि हम कुछ में क्योंकि अब तो मेरी कम्युनिटी बन गई है, मैं ऐसा बोलूंगी कि यहाँ पे मत जाओ तो वो नहीं जाएंगे, वो मेरा विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जाओ और उनको खाना अच्छा लगता है तो वो मुझे डीएम भी करते हैं कि बहुत अच्छा खाना था, थैंक यू फॉर सजेशन, ऐसे के। तो नहीं मैं बोल दूंगी तो उनका भी बिजनेस अच्छा, इस आप इस फील्ड में हो कि ग्लैमरस थोड़ी फील्ड है, हाँ। तो आपको कभी नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ा, कभी कोई ऐसी स्टोरी? हाँ, एक्चुअली मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। आपको मतलब लड़कियों के डीएम्स कैसे आते हैं वो आपको पता ही होगा कि बहुत गंदे गंदे डीएम्स आते हैं, मुझे आज तक नहीं आए ऐसे। मैं वैसे ऑलवेज बोलती हूँ कि मेरी इंस्टा फैमिली बेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है इंस्टाग्राम से, और बहुत मतलब वो मुझे मेरे एज अ फैमिली मेंबर ही रखते हैं, कहीं पे उनकी शादी में बुलाते हैं, बर्थडे पार्टीज में बुलाते हैं, ऐसा बहुत अच्छा फैमिली जैसा बन गया है अब तो मेरा कम्युनिटी। सो मुझे ऐसा नेगेटिव रिव्यूज फूड के बारे में होगा, कोई मतलब बाहर के आके बोल देगा तो वो ठीक है, बट मेरी कम्युनिटी, मेरा जो इन्फ्लुएंस मतलब सॉरी मेरे जो फॉलोअर्स है वो नहीं करते हैं। बाहर के आके कोई रख देंगे कोई कमेंट, तो अभी भी मैं 2-3 बार ही आया होगा, बट ऐसे डीएम्स गंदे गंदे डीएम्स आते हो वैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वो मुझे मतलब आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ, लड़कियों को ये चीजों का सामना करना पड़ता है अक्सर। और वो एक कमेंट आएगी ना, वो दिमाग में घूमती रहेगी 3-4 दिन तक कि ऐसा क्यों किया इसने। हम इतने पॉजिटिव होके कोई वीडियो बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। मुझे कमेंट्स आते हैं मेरी हिंदी के बारे में कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, वो मैं मानती हूँ मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि गुजराती थोड़ी एक्सेंट आ जाती है। ऐसे मेरा मेन पेज जो है वो गुजराती में ही मेनली होता है, मेरी कम्युनिटी भी गुजराती है, बट हिंदी में मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि सबको गुजराती नहीं आती होती है, इसलिए तो इस बार इस पे कमेंट आती है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, हर किसी में हर कुछ टैलेंट नहीं होता। नहीं, वो मैं अभी हो रहा है थोड़ा धीरे काफी मतलब अभी भी आप हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो बेटर लग रहा है। ना मैं आई तब इसीलिए बोला कि हम गुजराती में बोलेंगे या हिंदी में। अच्छा, जो ये एक और क्वेश्चन है, आजकल जो लोग हैं वो हेल्थ और टेस्ट के बीच में फंसे हुए हैं। हाँ, उसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, अभी तो एक नया नियम आया था, मतलब कि क्या होता है कि जो किचन का डोर होता है उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, कि हम देख सके उनके अंदर क्या कैसे बन रहा है या कैसे नहीं बनता। वो तो मतलब कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ तो उन्होंने मतलब ये अब सबको करना ही है, कंपलसरी है। तो उनका जो ग्लास का कांच होता है, मतलब ग्लास का डोर होता है, सो यू कैन सी कि वहाँ पे कैसा बन रहा है या नहीं। तो वो बहुत सुधर गया है कि वो किचन क्लीन रखने लगे हैं।
एंड उसके साथ साथ वीएमसी का चेकअप भी होता ही रहता है कि कैसा ऑयल है कैसे नहीं, फेस्टिवल के टाइम और ऐसा। तो अब तो स्ट्रीट फूड पे आई कैन से कि कैसा होगा या नहीं, बट रेस्टोरेंट में तो अभी ये सब ध्यान में रखने लगे हैं सब कि खाना हेल्दी होना चाहिए, ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए जब वो कुछ फ्राई करते हो तब, मैंने ऐसा। एंड अब मैं बोल रही थी ना अभी कि लाइक फैंसी फूड होता है बाहर के क्यूजिन में, तो वहाँ पे तो लाइक ऑलिव ऑयल होना है तो वो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, एंड वो इंग्रेडिएंट्स सारे मतलब बाहर से ला के ही यूज़ करते हैं, तो वो अच्छा है। अब इतना नहीं रहा कि कुछ भी डाल देंगे ऐसा, पर फिर भी खाना तो बाहर का घर का फर्क पड़ ही जाता है। बाहर का खाना बाहर का होता है। हाँ, बाहर का खाना बाहर का होता है, वो मम्मी बनाती है वो बहुत बड़े प्यार से बनाती है, ऐसा नहीं होता। ये तो है। अच्छा चलिए, आपके बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, लास्ट में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं, खाते रहो, खुश रहो, मुस्कुराओ। मुझे फॉलो करो। यस, और मुझे फॉलो करो। तो ये थी जूही पटेल जी, जिन्होंने अपनी प्यारी सी लवली सी फूड जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे उन्होंने ये पेज स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी, और कई सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ पॉजिटिवली ली और अपने पेज को ऐसे ही आगे बढ़ाती गई। और जो आजकल का दौर है वो सोशल मीडिया का ही है। लोग पहले जो फूड के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि लोग सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, और जो हमारे फूड इन्फ्लुएंसर्स और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो राइट होती है एकदम, और वो सटीक होती है, क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर वो हमें गलत बताते हैं तो हम उनको कमेंट करके बोल सकते हैं नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखते हैं कि नहीं, अगर मैं गलत कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी तो मुझे सामने से रिप्लाई आएगा और कहीं ना कहीं फॉलोवर्स कम हो जाएंगे। तो उस डर से वो लोग सही जो चीज़ें होते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। यही मकसद है VNM TV का, जो फूड इन्फ्लुएंसर हैं वो आप तक पहुंचाने का, और जो उनकी सच्चाई है उसे आप तक पहुंचाने का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आए आप और हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरा भी शायद पहली बार ही इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा लगा आपको? मजा आया, थोड़ी नर्वस थी बट हो गया। और ऐसे ही प्यारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स से मिलने के लिए देखते रहें VNM TV पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर।